কিছুমান ফেক ভিডিঅ' বিজেপিয়ে লৈ আমাৰ মানুহখিনিক অলপ আৰেষ্ট কৰিছে। কি ফেক ভিডিঅ' মই নাজানো, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে অসমৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ কাৰাপ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। কি ফেক ভিডিঅ' মই নাজানো, কিন্তু এইটো কথা সঁচা যে আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমানত ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ ভ্ৰষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया। अभी कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों को कुछ फेक वीडियो के लिए अरेस्ट किया गया, पर मुझे पता नहीं क्या फेक है, क्योंकि आपने जैसे कहा ये सही है। लोग जानते हैं कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री असम के इतिहास में और वर्तमान में भारत में हिमंत बिश्व शर्मा जी। तो आमार मानुखिनिक अरेस्ट करिले कि हब? मानुहर मनत जी कथा सोमाई गइছে एटुतो लुकाब नोवारे, जी सचा कथा एटु लुकाब नोवारे। और अসমत इमान जेल नाइ जे आमार कांग्रेसर कर्मीखिनिक जदि अरेस्ट কৰিবলৈ বিচাৰে। आमार एकिटा दिনৰ ভিতৰত कांग्रेस दल इमान शक्तिशाली হৈছে। মই চ্যালেঞ্জ কৰিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, অসমৰ ভিতৰত ইমান জেল নাই আমাৰ कांग्रेस মানুহক জেললৈ পঠাব। এজনক পঠালে 10 জন থিয় হৈ আছে। আৰু যদি কিবা এটা ফেক কথাৰ কাৰণে যদি জেল পঠাব পাৰা যায়, अरेस्ट কৰিব পাৰা যায়, तो प्रथमते मुख्यमंत्री নিজকে अरेस्ट কৰিব লাগে। आज अगर फेक वीडियो पे अगर अरेस्ट हो सकता है फेक चीजों पर, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना चाहिए। राहुल गांधी का बॉडी डबल, वह पाकिस्तानी एजेंट, गोटे माटी जिमान माटी सम्पत्ति আছে सब मानुक দি দিব। এই ইমান যে ভুয়া কথাবোৰ যে কৈ আছে, প্ৰথমতে তেওঁকে अरेस्ट কৰিব লাগে, কিন্তু এইখিনি তেওঁলোকে কৰা নাই। তেওঁলোকে আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগৰ নেলি কাণ্ডৰ লৈ তেওঁ কিছু কাগজ ওলাবলৈ বিচাৰিছে। ঠিক আছে, যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নেলি কাণ্ড লৈ কাগজ ওলাবলৈ বিচাৰে, আমাৰ ফালৰ পৰাও দাবী যে আমি শুনিছো এটা টাডা চাৰ্জशीट লুকাই গ'ল। अगर पुराने कागज दाखिल करने का इतना ही शौक है, तो हम भी अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री को कि एक टाडा चार्जशीट वो गायब हो गया, उसको भी दाखिल करें और लोगों के बीच में उसका फोटोकॉपी दे। मानवेंद्र शर्मा रिपोर्ट, उसको भी लेकर एक चर्चा होना चाहिए। बीजेपी निजे आनिছিলে हारोडा और लुइस बर्जर, जे हारोडा लुइस बर्जर कांडत हिमंत बिश्व शर्मा डांगरियाक जेलলৈ পঠাব। এইখিনিও অলপ ফাদিল কৰক, এইখিনিও আৰম্ভ কৰক। তাৰ ওপৰতো চৰ্চা হোৱাটো বিচাৰো। হাৰোডা আৰু লুইস বৰ্জাৰ অৰুণাচলৰ এজন ডাঙৰ নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া নাম লৈছে নিজৰ সুইসাইড নোটত, এইটো লৈ চৰ্চা হ'ব লাগে। মণিপুৰৰ এজন উগ্ৰপন্থী কুকি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এফিডেভিটত লিখিছে যে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰত আহিছে। এইখিনিও হ'ব লাগে, এইখিনিও ৰাজহুৱা কৰক, ৰাইজে গম পাওক যে টাডা চাৰ্জशीट কোনে লুকালে, ৰাইজে গম পাওক যে মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাক কোনে হত্যা কৰিলে, ৰাইজে গম পাওক লুইস বৰ্জাৰ লগত কোন জড়িত, ৰাইজে গম পাওক হাৰোডা কেলেংকাৰীৰ লগত কোন জড়িত, ৰাইজে গম পাওক যে অৰুণাচলৰ এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজৰ অন্তিম নোটত কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈছে, ৰাইজে গম পাওক যে কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নাম লৈছে। এয়া হ'ল দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যি অসমত আমি অলপ দিন আগতে প্ৰায়তো তৰুণ গগৈ দেৱক স্মৰণ কৰিছোঁ, যি অসমত আমি প্ৰায়তো জুবিনদাৰ জন্ম জয়ন্তী তেখেতৰ উপজা দিনটো আমি উদযাপন কৰিছোঁ, আজি এই অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা অৱস্থা চলি আছে। আৰু যাৰ ফলত ৰাইজ গম পাইছে, ৰাইজ একত্ৰিত,
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক পৰাজিত কৰিবলৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ বাহিৰে ভোটাৰ লিষ্ট ভুৱা ভোটাৰ লিষ্ট আনি নিজকে বচাবলৈ আৰু কোনো উপায় নাই। কিন্তু এই ভুৱা ভোটাৰ লিষ্ট যোগেদি অসমৰ অস্তিত্ব, অসমৰ স্বাভিমান, অসমীয়া মানুহৰ মৰ্যাদা, অসমীয়া মানুহৰ ভোটৰ শক্তিটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে। মাটিটো দিলেই বাহিৰৰ মানুহখিনিক, ৰেলৰ চাকৰিবোৰ দিছে বাহিৰৰ মানুহখিনিক, ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাবোৰ দিছে বাহিৰৰ মানুহখিনিক। এতিয়া ভোটৰ ক্ষমতাটো এতিয়া বাহিৰৰ মানুহখিনিক দিবলৈ বিচাৰিছে। আজি অসমৰ ভিতৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ, থলুৱা মানুহৰ মাটি অধিকাৰ, সংস্থাপনৰ অধিকাৰ, ঠিকা কৰা অধিকাৰ, ভোট দিয়া অধিকাৰৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছ দল সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই সংগ্ৰামত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, সহায় কৰি যাব, আগবঢ়াই লৈ যাব। মই পৱন খেৰা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ লগৰ মাজত থকা বাবে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ये वोट चोरी का जो मामला है, ये तो बिहार में काफी जोर शोर से अभी विपक्षी दलों को उठाई, लेकिन बिहार की जनता उस मुद्दे को अभी तक खारिज कर। आपको क्या लगता है कि असम में उस मुद्दे की जनता ने अप्लाई की? जो आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता ने वोट चोरी के मुद्दे को खारिज कर दिया, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि बिहार के चुनाव में जिस तरह से SIR हुई, हम लगातार सबूतों के साथ आपके सामने आते रहे कि ये 65 लाख 68 लाख लोगों के नाम कैसे काटे जा रहे हैं। तो ये चुनाव जैसा हुआ वो आपके सामने है। इसके रिजल्ट पे अब कोई टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं समझता, लेकिन आपके सामने है कि कैसे चुनाव लड़ा गया और कैसे ये चुनाव जीता गया। और ये अब टूल किट बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। जहां भी सवालों से ये डरते हैं, आप कहीं ये न पूछ लें कि आदिवासियों की जमीन का क्या हो रहा है, आप कहीं ये न पूछ लें कि हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार को पास कितनी जमीन आ गई है। इन सवालों से डरते हैं, इसलिए ये चुनाव आयोग के पीछे छिप कर चोरी करते हैं। इसलिए ये समाज में विवाद भी पैदा करते हैं। जो अभी गौरव जी बड़ी अच्छी भाषा में बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा था मुझको, कि पुरानी चीजें निकाल कर लाएंगे, विवाद पैदा करेंगे समाज में। वो इसलिए करेंगे क्योंकि सवालों से ये डरते हैं, सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। हम खुलकर बोल रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का पूरा परिवार भ्रष्ट है, जमीनों का इन्होंने बहुत हेर फेर की है। ये सारी जमीनें हम जब सत्ता में आएंगे, गौरव भाई ने ये स्पष्ट कह दिया है कि ये जमीन, तमाम जमीनें आदिवासियों को, नौजवानों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करके उनको सुपुर्द करेंगे, उनको सौंपेंगे, ताकि वो अपना उद्योग चला सके, अपनी जिंदगी शुरू कर सके। ये जमीनों पे असली हक असम के लोगों का है, असम के आदिवासियों का है। ये हक हम उन्हें वापस दिलवाएंगे। बस बिहार को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार को सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, निर्वाचन आएंगे, निर्वाचन चले जाएंगे, लेकिन भारत वासियों का जो विश्वास केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर एक जमाने में था, बिहार निर्वाचन के बाद उस विश्वास में ऐतिहासिक गिरावट हुई। हमने कुछ दिन पहले संविधान दिवस उद्यापन किया और केंद्रीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक एक संस्था है, और बिहार में जिस प्रकार से निर्वाचन के बीच 10,000 रुपए लोगों के बीच में बांटने का अवसर मिला, इस प्रकार का चुनाव आयोग का अगर कार्रवाई रहेगा, लोगों का विश्वास और गिरता रहेगा। बहुत कुछ गिर चुका ही है, लेकिन अगर बिहार के निर्वाचन में अगर सबसे बड़ी किसी को क्षति पहुंची है, तो विरोधी दलों से ज्यादा केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पहुंचे, क्योंकि लोगों का विश्वास उनसे उठ रहा। और इसलिए मेरी मांग ये है कि भारत पूरे विश्व का IT हब है। हमारे भारत के वासी
गूगल के सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनियों की पूरी आईटी टेक्नोलॉजी हम संभालते हैं। जो सरकार यूपीआई की इतनी बात करती है, जो सरकार जैम और आधार की बात इतनी करती है, डिजिटल इंडिया की बात करती है, डिजिटल वोटर लिस्ट से क्यों डरती है? राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप ठीक है, स्मार्ट इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, तो कागज कलम से आप सरकारी कर्मचारियों से इतना काम क्यों करवा रहे हो, जिनके द्वारा आज एक महीने में 24 लोगों की आत्महत्या, जब पूरा काम डिजिटल हो सकता है। फ्रॉड, फेक सब कुछ खत्म हो सकता है। हमने आधार क्यों किया? अगर आज के तारीख पे हम वोटर लिस्ट में कोई ब्राजीलियन मॉडल का नाम हम देख रहे हैं 100 बार आ रहा है, उसके नाम पर वोट भी पड़ रहे हैं। चुनाव की वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं और डिजिटल वोटर लिस्ट करने के लिए ये झिझक रहे हैं। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि अगर केंद्रीय निर्वाचन आयोग थोड़ा सा भी अपने रेपुटेशन को लेकर चिंतित है, लोगों के बीच में उनके विश्वास को लेकर अगर चिंतित है, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करें, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करें। सवाल है यहाँ पे के द्वारा अगर वोट चोरी होगी तो कांग्रेस इसको करेगा, और अगर हो जाएगी तो इलेक्शन मैनेज करेगा कांग्रेस। आप बैठे हैं फिर भी चोरी होगी। कांग्रेस अकेली नहीं, कांग्रेस के साथ असम का एक एक नागरिक है। मैं पूरा भरोसा है मुझे, कांग्रेस के साथ आने की जरूरत नहीं है। आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आप भी आगे आएंगे, मुझे भरोसा है। क्या आप चाहते हैं आपका वोट चोरी हो? मैं नहीं मानता कि आप अपना वोट चोरी होने देंगे, और ना ही आप अपने पड़ोसी का वोट चोरी हो, ना ही आप ये बर्दाश्त करेंगे कि बगल के राज्यों से लोग आकर वोट देकर चले जाएं। आपका वोट आपकी सरकार, आपकी इच्छा से होनी चाहिए, पड़ोसी राज्यों की इच्छा से नहीं होनी चाहिए। असम के अस्तित्व का सवाल है, असम की पहचान का सवाल है, असम की आने वाली नस्लों का सवाल है। ये पवन खेरा जी ने बात की, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ कि असम की मीडिया नोएडा मीडिया से थोड़ी अलग है, बहुत अलग। असम की मीडिया हिमंत बिश्व शर्मा जी के अनुसार चलती नहीं, और असम के मीडिया पर भी ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना जितना एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, उतना ही हमारे समाज के चौथी स्तंभ का है। चतुर्थ स्तंभ एके कर्तव्य सम्पूर्ण বিশ্বাস যে অসমৰ মিডিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়াতকৈ পৃথক, আৰু অসমৰ মিডিয়া ভুৱা ভোটাৰ তালিকা নোহোৱাটো বিচাৰে। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে देखिए, हमारे भारत में हमारे फोक कल्चर है, हमारे विभिन्न जनजाति हैं, जिनकी परंपराएं अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनकी भाषा अलग, और बार बार भाजपा का एक ही मंशा है कि विभिन्न भारत के और असम के जनजातियों की जो उनकी जो परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, विविधता है, पहचान है, कस्टम्स है, उसको खत्म किया जाए। और सब कुछ नागपुर में जो सोचते हैं उसके अनुसार झारखंड के आदिवासी, असम के बोडो आदिवासी, हमारे जनजाति, मेघालय में खासी ट्राइब, सिर्फ नागपुर के अनुसार हम काम करें। ये एक जरिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर उनको खत्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। भारत अनेकों भाषाओं का देश है, अनेक जनजातियों का देश है, अनेक परंपराओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश, और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नागपुर से पूरे देश का जनजाति उस पर शासन करे। ये बस एक जरिया है, इसकी पूरी जो राजनीति है हम समझते हैं, और इसीलिए हम जनजातियों के साथ हैं, और विभिन्न हमारे समाज में जो हमारे परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम उनका सम्मान करते हैं।